students, how are you all? So we were learning the chapter number 5 of class 10 science, that is periodic classification of elements. In the previous lectures we have learnt about why classification is necessary or what are the benefits of the classification of elements. There are too many number of elements, that is 118 elements present on earth. Out of them 94 are naturally occurring, few are the radioactive decompositions, and rest of the elements, that is 20 to 22 elements, are prepared in the laboratories. After the importance of classification, we have done about the Dobrenius triads. What were the Dobrenius triads? Dobrenius prepared the group of 3 elements. Dobrenius prepared the group of 3 elements, for example, lithium, sodium, potassium. And what was the specifications of the Dobrenius triads? That the average atomic mass of the first element and the average atomic mass of the third element gives the atomic mass of the second element, that is 46 by 2, that is equals to the 23U. So what was the first specification of the Dobrenius triads? That the average atomic mass of the first and the third element gives the mass of the second element. Second specification, that each of the element present in the one group, each of the element present in the same group have the same chemical properties. After the Dobrenius triads, the second attempt was made by Newland. Newland's law of octaves. What was the Newland's law of octaves? Newland made the classification of the 56 elements that were present there. For example, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen and oxygen. What were the other elements? After oxygen we have fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. And how were these elements arranged? These elements were arranged according to the sa, re, ga, ma, pa, da, ni. These elements were arranged according to the musical notation sa, re, ga, ma, pa, da, ni. And what was the Newland's law of octaves? What do we mean by the octaves? Oct means 8. It means that each and every 8th element has the same chemical properties, starting from hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. It means the first and the 8th element has the same chemical properties. If you are starting from lithium, then lithium and sodium has the same chemical properties. Beryllium and magnesium has the same chemical properties. Boron and aluminium has the same chemical property. Carbon, silicon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur. Clear? So these were the specifications given by the Dobrenius and Newland. Now what were the common limitations between the Dobrenius and Newland? Both of them classified the elements according to the atomic mass. तो हमें atomic mass से क्यों classification नहीं कर सकते? Because of the concepts of the isobars. Isobars क्या होता है? जल्दी से याद करो. What do we mean by isobars? Isobars are the elements that are having the same atomic mass. For example, the atomic mass of calcium is 40U. What is the atomic mass of argon? The atomic mass of argon is 40U. तो अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैल्शियम की जगह पे आर्गन भी रह सकता है, आर्गन की जगह पे कैल्शियम भी रख सकता है. सो वी कैन नॉट हैव ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ कैल्शियम और आर्गन. किसको आगे रखेंगे? बिकॉज वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. कि सबसे छोटा एटॉमिक मास किसका है? हाइड्रोजन. आफ्टर हाइड्रोजन वी हैव लिथियम, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम बोरोन. सो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं. But because of the concepts of the isobars that the elements having the same atomic mass, तो इन दोनों में से किसको पहले रखेंगे? That was the first limitation. What was the second and the most important limitation? That they did not explain chemical properties. उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया. अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इफ यू वांट द क्लासिफिकेशन, ये सारा क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 118 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम याद नहीं रख सकते.
So we need to group them together, and the elements having the same chemical properties are grouped in the one group. Then by knowing the chemical property of any one element, we can know the chemical property of the whole group. लेकिन chemical properties explain ही नहीं की थी. उन्होंने क्या बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की chemical properties same है, but कैसी है? डोनेट कर रहे इलेक्ट्रॉन, गेन कर रहे, दे आर द मेटल्स, दे आर द नॉन मेटल्स, फॉर्मिंग द आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेट्रा. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने ना तो डोब्रेनियन ने एक्सप्लेन की थी, ना तो न्यूलैंड ने एक्सप्लेन की थी. ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन किसने की? वो एक्सप्लेन की मेंडेलीव्स ने. तो मेंडेलीव्स ने एक्सप्लेन की, जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े. ये अब तक का पूरा रिवीजन ही था. तो यहां पे हमने डोब्रेनियन स्टार्टिंग में पढ़ा, फिर न्यूलैंड पढ़ा, देन हमने मेंडेलीव्स पढ़ा. तो मेंडेलीव्स ने क्या किया था? तो मेंडेलीव्स ने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया. कितने में? 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स. 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स में पूरा पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया. हाउ? बाय रिएक्टिंग द एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बाय रिएक्टिंग द एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चूज किया? बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. सभी से रिएक्ट कर सकते हैं. If you are choosing hydrogen and oxygen, then they both the elements can react with lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, fluorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, सभी एलिमेंट से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकते हैं. So we can know that how they chemically react, how each and every element chemically react with hydrogen and oxygen. उसने जो बनाया वो क्या बनाया था बेटा? याद होना चाहिए. हमने 3 लेक्चर उसके बारे में हमने निकाले. उसने कितने ग्रुप्स बनाए थे? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6. कितने ग्रुप्स थे टोटल? याद करो. देयर वर टोटल 8 ग्रुप्स. देयर वर टोटल 8 ग्रुप्स इन दी मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. और वो ग्रुप्स कैसे बने थे? बाय रिएक्टिंग द एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसमें पीरियड्स कितने थे? याद करो जल्दी से. हाउ मेनी पीरियड्स वर प्रेजेंट इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल? 6 ग्रुप, ग्रुप नंबर 7 and group number 8. Clear? How many periods were there? Period 1, period 2, period 3, period 4, period 5 and period 6. Now what does the group and periods indicates? What does the groups and period indicates? Group indicates the valency and the number of electrons present in the last orbit, whereas the period indicates the number of orbits possessed by any element. कि अगर हम पीरियड 1 में देखें तो कौन है? हाइड्रोजन. यहाँ पे कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. आगे बात करें तो सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स कैसे ढूंढे थे? उन्होंने एलिमेंट्स ढूंढे थे बाय रिएक्टिंग देम विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बाय रिएक्टिंग देम विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इन सब में से सारे रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन नियोन नहीं कर सकते. तो उनको नियोन मिला ही नहीं था. उन्हें कोई भी नोबल गैस नहीं मिला था, चाहे वो हीलियम हो, नियोन हो, आर्गोन हो, क्रिप्टोन हो, जेनोन हो, रेडोन हो. कोई भी नोबल गैस उसे नहीं मिला था. नाउ विथ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. लास्ट वाला नहीं था. यहां पे भी अगर हम देखें तो बेटा कैल्शियम, उसके आगे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, उसमें भी कुछ मिसिंग थे. ये सारी चीजें हमने की थी. लेकिन इससे एक बेनिफिट हुआ कि हमें पता चल गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है. केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन की थी? यहाँ पे इसके ऊपर वो सारी चीजें लिखी थी. याद आया? RH, R2O, RH2RO, RH3, R2O3, RH4RO2, RH3, R2O5,
RH2RO3, RH2O7, और यहाँ पे तो कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो हो जाएगा RO4। क्लियर? तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें हमने क्या चीजें की है, तो थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक ही लिमिटेशन आता था, एक मेजर लिमिटेशन आता था, कौन सा? कि भाई मेंडेलीफ ने भी अरेंजमेंट किया, किससे किया? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के हिसाब से हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते बेटा, एटॉमिक मास के हिसाब से हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज दैट वर द लिमिटेशंस ऑफ द डोब्रेनियस ट्राइड्स, दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, एंड दैट इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट आए, हेनरी मोलेस्ली। हेनरी मोलेस्ली ने कॉन्सेप्ट दिया ऑफ द एटॉमिक नंबर, ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट में, कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो फिर ऐसे पता चला कि कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। इट मींस द एलिमेंट हाइड्रोजन हैज ए एटॉमिक नंबर 1, helium has atomic number 2. Why? Because the number of protons present in the hydrogen is 1, the number of protons present in the helium is 2, the number of protons present in lithium is 3, the number of protons present in the lithium is 3, then the atomic number of lithium is 3। कि अगर यहाँ पे लिथियम के पास प्रोटॉन्स कितने बेटा? 3, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा? द एटॉमिक नंबर विल आल्सो बी इक्वल्स टू 3। व्हाई द एटॉमिक नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास? क्योंकि समहाउ आप सोचो कि भाई लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, वैसे प्रोटॉन्स निकाल नहीं सकते। एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेंटर पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियस इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द प्रोटॉन्स, ऑर्बिट होती है और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट गेन किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट रिमूव प्रोटॉन। वैसे आज तो उतना साइंस हम पहुंच गए कि हम प्रोटॉन्स को भी निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं आज के साइंस के अकॉर्डिंगली भी अगर हम लिथियम में से जो 3 प्रोटॉन है, लिथियम के जो 3 प्रोटॉन है उसमें से समाउ हम एक प्रोटॉन उसमें से रिमूव कर दें, इफ 1 प्रोटॉन आउट ऑफ द लिथियम एटम इज रिमूव्ड, तो लिथियम के पास पहले 3 प्रोटॉन थे, अभी कितने बच गए? 2 प्रोटॉन, एक हमने निकाल दिया। सो इफ 1 प्रोटॉन ऑफ द लिथियम इज रिमूव्ड एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स 2, तो 2 प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर 2, और एटॉमिक नंबर 2 वाला कौन होता है? हीलियम। कौन होता है बेटा? हीलियम। तो लिथियम अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ देगा और हीलियम की प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। समझ में आया क्या हुआ? अगेन लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, lithium has 3 protons, the atomic number of lithium is 3. If somehow we are able to remove the proton of the lithium, कोई एक प्रोटॉन हमने रिमूव कर दिया कि तोड़ दिया उसको, then लिथियम की सारी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, वो एटम है सारी प्रॉपर्टी छोड़ देगा और किसकी प्रॉपर्टी ले लेगा बेटा? हीलियम की। सेम चीज यहां पे देखते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 7, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 8। अगर हम कुछ भी करते हैं, कोई भी साइंटिफिक टेक्निक लगाते हैं और ये जो नाइट्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं, सो नाउ प्रोटॉन कितने बन गए बेटा? 8। देन वो जो नाइट्रोजन का एटम है नाइट्रोजन की सारी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, सारी की सारी नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी छोड़ देगा और किसके जैसी प्रॉपर्टी बना लेगा? ऑक्सीजन के जैसी। तो ऑक्सीजन के जैसा क्यों बन गया? क्योंकि उसके पास 8 प्रोटॉन है और उसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया। तो अभी हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम में उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसीलिए एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास तो दो या तीन एलिमेंट्स के सेम हुआ करते थे, तो कैल्शियम एंड आर्गन इज द सेम एटॉमिक मास 40-40,
क्लियर। कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14, उसका और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1414। सो ऐसे तो बहुत सारे आइसोबार पेयर्स है, बट कोई भी आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स में कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। We do not have any two elements present in the out of 118 elements that they have the same atomic number but the different chemical properties। अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा और वो एलिमेंट भी सेम होगा। क्लियर। तो कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं हो सकते जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो यहां से हमें आइडिया लगना चाहिए कि अगर आपको एलिमेंट को क्लासिफाई करना है तो आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से करना पड़ेगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। ये अभी हमें पता चला क्योंकि मैंने आपको ये थोड़ा बहुत समझाया। डोब्रिनियर तो स्मार्ट थे, उससे न्यूलैंड भी स्मार्ट थे, मेंडेलिव्स ने तो बहुत ही अच्छा टेबल बनाया, वो भी स्मार्ट थे। देन व्हाई दैट साइंटिस्ट डिडंट यूज दिस टेक्निक? उन्होंने क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया तब हेनरी मोलेस्ली ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। उनके पास एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास तो है। तो हमने क्या किया, इसके जो लिमिटेशन है उसको सॉल्व किया। पहले तो इसके लिमिटेशन याद करो। सबसे पहला लिमिटेशन था एटॉमिक मास वाला, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक नंबर में। चलो, तो एक तो सॉल्व हो गया। दूसरा लिमिटेशन क्या था, ये वाला देखो, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल एक ही जगह पे तीन एलिमेंट रखे हैं। आफ्टर दैट निकल के बाद क्या आएगा, फेकोनिकुंज। तो यहां पे रख दिए, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। सो इस तरीके के एलिमेंट्स रिपीट होने लगे, तो मतलब ये जो ग्रुप की स्ट्रेंथ है ना कम होने लगी। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 और ग्रुप होते तो 8 ग्रुप है, 11th ग्रुप होता तो वहां पे मैं कोबाल्ट लगा देता, 12th ग्रुप होता तो मैं वहां पे निकल लगा देता, 13th ग्रुप होता तो कॉपर वहां पे आ जाता। यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करना पड़ता। एक ही जगह पे हम दो एलिमेंट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी या तो पोटेशियम जैसी है या तो कॉपर जैसी है। तो सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम जैसी है, तो कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एक ही जगह पे हम दो एलिमेंट्स नहीं रख सकते। सो वी नीड मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स। There were only 8 groups and 6 periods। तो हमने नया पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स है। क्लियर? तो यहां पे हमने ये चीज सीखी। अनदर थिंग कि भाई यहां पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, मिसिंग थे, है ना, उसका फोरकास्ट कर दिया था। Mendeleev forecasted that in the future the elements will be found that having the chemical properties such as इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरॉन। इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को फोरकास्ट कर दिया था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फोरकास्ट कर दी थी। बट नाउ वी हैव ऑल द 118 एलिमेंट्स, वी हैव ऑल द 118 एलिमेंट्स, तो हमें कोई मिसिंग एलिमेंट ही नहीं है। मिसिंग एलिमेंट नहीं है तो कोई खाली जगह नहीं रहेगी। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोटॉप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट हमने अरेंजमेंट यहां पे मास के हिसाब से किया था। कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स यानी जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। देयर आर अनदर टाइप्स ऑफ कार्बन, जनरली द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, but out of thousands of carbon atoms there are few carbon atoms having the atomic mass 14, having the atomic mass 15। तो वो तो नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाता है, तो नाइट्रोजन के बाद रखना पड़ेगा। सो यहां पे मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटॉप्स को रख नहीं सकते थे, बट हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी जो बनाना चाहते हैं उसमें क्या किया, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया। तो C12 है, जो कार्बन है जिसका मास 12 है उसके पास भी 6 प्रोटॉन है। कार्बन जिसका मास 14 है उसके पास भी 6 प्रोटॉन है। कार्बन जिसका मास 15 है उसके पास भी 6 प्रोटॉन है। इट मींस ऑल ऑफ द कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, ऑल ऑफ द कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6। तो उनको एक ही जगह पे रख सकते हैं। वी डिड नॉट नीड टू प्लेस देम ऑन द डिफरेंट स्पॉट्स। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो अगर आपने कल यहां पे मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में ध्यान से पढ़ा होगा लास्ट 2 लेक्चर्स, then and then you would be able to easily understand the modern periodic table। तो modern periodic table में हमने